again you welcome on my channel. And as you know, in my previous video what I talked about, and now I don't want to tell from where I am. And as you can see on the board, आप ये सब अपने बोर्ड पे देख सकते हो, गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल 11 PS, and this is my second video. First you have to see it, part second, which chapter was going on from history. The chapter was going on 1857 revolt. First I am going to tell about what we talked in our first lecture. It is in my first video. We talked in our first video about this revelation. Okay. Then yesterday, you have noticed that in my previous video I told you have to write down something. What you have to write down? Why I am writing this date 10 May 1857 and why I am writing this date 31st May 1857. This was the date in my video. I told you this day was decided on that day. We protest all over the country, but due to some circumstances, due to some conditions, कुछ circumstances ऐसे रहे, कुछ conditions ऐसी रही, it was started on 10 May. Means now I am going to remove from this one interrogation for you. पहले आपकी रिवाइज क्लास है, इसमें आप इसको देखिए कि मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया. What I told you about it. मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया था. जैसे 10 May 1857, the revolution was started on this date. It means इस दिन स्टार्ट हुआ. And in your book, what we have, आपकी बुक में लिखा होगा broke out. BROKE, broke out. It means broke out means start. Okay, this is phrase verb and this is word meaning. And from where it was started, कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरठ से. अभी अपने बात करते हैं. Next we are talking 31st May. In spite of this day, this revolution was started on this day. It means इस दिन स्टार्ट होने के बजाय इस दिन ये स्टार्ट हो गया. Next we are going to continue. कुछ मैंने आपसे क्वेश्चंस किए थे and I told in my video कि who has become the leader of this revolution. A lot of leaders were there, prominent personality. Prominent means उस टाइम के famous leader जो इसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इसे लीड कर रहे थे. But that time the last Mughal emperor, what was the name of that emperor? Bahadur Shah Zafar II. Bahadur Shah Zafar II, he lead this protest, he lead this revolt, वो इसका लीडर बना. When the spoil of the India, it means Indians ने जब उसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें लीड करिए, आप हमारे लीडर बनिए, बहादुर शाह जफर था वो सेकंड फ्रॉम दिल्ली. अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे. अभी सुनिए ध्यान से और बड़े अच्छे से सुनना है मेरी बातों को. एंड व्हाट इज द कंडीशन व्हेन यू आर वाचिंग माय वीडियो. कंडीशन ये है, आपके पास रफ नोटबुक और पेन हो, आपको जो कुछ मैं यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ नोट करिए. एंड इफ द इम्पोर्टेंट सेंटेंस इज हियर, कोई इम्पोर्टेंट सेंटेंस है उसको आपने अलग से नोट डाउन करना. एज ए नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. नोट्स बनाइए आप अपने. मेरठ से स्टार्ट हुआ and on which day 10 May. After that, what they decided, they means I am talking about the revolutionaries, I am talking about the revolters. What did they decide? कि हम दिल्ली चलते हैं और यहाँ वो पहुंचे 12 and 13 May. कुछ बुक्स में इसे 11 May भी दिया हुआ है. 11 May they went to Delhi, they reached there. वो दिल्ली जाते हैं and they are requesting. यहाँ आने के बाद उन्होंने किससे रिक्वेस्ट किया? We can say that requested, REQUESTED, requested बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट किया. चलो एक क्वेश्चन है कि what was the age that time? बहादुर शाह जफर की उस टाइम एज क्या थी? In our previous video I told you उस टाइम एज थी 83 years. Who was aged 83 years? बहादुर शाह जफर. Revolters, revolutionaries, they are requesting to Bahadur Shah Zafar कि please we have to
you have to be our leader, you have to lead us. आप हमारे लीडर बनिए, हमें लीड करिए. बहादुर शाह जफर first did want to be the leader of this revolt, but at last he did not have, it means he had not any option, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था. बहादुर शाह जफर ने डिसाइड किया कि इस रिवोल्ट का मैं आपका क्या हूँ, लीडर हूँ. तो अब अपने बात ये बनती है कि यहाँ पे सिर्फ कौन रहते हैं, बहादुर शाह जफर हैज बिकम द लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड. मेरठ के बाद बहादुर शाह जफर इसके लीडर बन गए. एंड आफ्टर ए शॉर्ट टाइम Bahadur Shah Zafar was arrested by the British government. Europeans, it means British government इनको arrest किया. We can say that we have a lot of words, white people, या Europeans, या British government, या गोरे लोग, अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया, arrest कर लिया. And his grandson and his son were killed before his eyes. बहादुर शाह जफर के सामने इसके grandson को और इसके बेटे को इसके सामने मार दिया गया. And बहादुर शाह जफर was prisoned. प्रिजन का मींस पता क्या होता है, प्रिजन मींस जेल, PRISON, प्रिजन. He was arrested and imprisoned in Rangoon. बहादुर शाह जफर को रंगून में प्रिजन कर दिया गया. He was arrested by the British government and at last in 1962, sorry for it, in 1862 he passed away from the world. 1862. तो ये मेरी बात को ध्यान से सुनिए. एक दे आस्क द क्वेश्चन इन व्हिच ईयर बहादुर शाह जफर वो डाइड, ही पास अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. 1862 में बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. कहां डेथ होती है, रंगून. ओके. एंड बहादुर शाह जफर के सामने उसके ग्रैंडसन और उसके सन को मार दिया गया बाय द ब्रिटिश ने मार दिया. अकॉर्डिंग टू दिस the circumstances was not good, some policies were not in the favor of India. कुछ पॉलिसीज जो थी वो इंडिया के फेवर में नहीं थी. अब अपने बहुत सारी बातें करके a lot of talk about the revolution. हमने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें की चैप्टर पे. चलो अपन थोड़ा और आगे चलते हैं. ये ध्यान रखना हूँ इस बहादुर शाह बहादुर शाह जब कौन थे एंड फ्रॉम वेयर इट वाज स्टार्टेड. अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि ये 1857 जो रिवोल्ट है, इससे पहले कि आप ग्राफ को देखिए 1820 के आसपास कुछ प्रॉब्लम्स आती है, 1829 में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, 1855 में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है और धीरे धीरे यहाँ पे आके दिस हैज बिकम द रिवोल्ट और ये रिवोल्ट बन जाता है. It means policies were not good for the Indians. यहाँ पे क्या हुआ ये सुनिए. 1829 with the help of Lord William Bentinck, सती प्रथा was banned. इससे पहले सती प्रथा को बैन कर दिया गया because in our India there was a system. इंडिया के कल्चर में एक सिस्टम था कि जो विडो होती है वो सती होगी. सती का मीन्स क्या, वो अपने हस्बैंड के साथ उसको जला दिया जाता था, वो खुद भी मतलब जल जाती थी उसके साथ. तो इस सिस्टम को बैन किया गया था. इंडियंस ने फील किया कि दे आर चेंजिंग आवर कल्चर, वो हमारे कल्चर को चेंज कर रहे हैं. दे आर गोइंग टू मेक अस क्रिश्चियन, वो हमें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. से इंग्लिश स्कूल्स का स्टार्ट होना, वेस्टर्न कल्चर का इंडिया में आना. सम पॉलिसीज रियली गुड फॉर द इंडियंस, बट इंडियंस ने ये देखा कि हमें ये क्रिश्चियन बना देंगे अगर हमने इनका प्रोटेस्ट नहीं किया. इसी अकॉर्डिंग धीरे धीरे प्रॉब्लम चलती रही और यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. सम historians also say this was the first revolution for getting the freedom, कि हमारे इंडिया का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम था. कुछ ने ये भी बोला है. अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर. उसके बाद क्या हुआ, what was the main centers? मेन सेंटर का मींस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि this revolt focus you can say that on some part of the India. कुछ जगह ये बहुत प्रॉब्लम मतलब this was the burning stage. बर्निंग स्टेज का मीन्स ये है BURNING, बर्निंग स्टेज. लिटिल बिट अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही क्या इफेक्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल कोटा में काफी ये मतलब कि अपने शोनेस में रहा. नेक्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल अवध.
For example, Meerut, just I am talking about the Meerut. And Nasirabad in Ajmer. Okay. कुछ मेन सेंटर्स कानपुर, ग्वालियर. ओके, दीज आर द मेन सेंटर्स. यहाँ किन ने लीड किया, जिस झांसी. ओके, और वहाँ मतलब कि क्या रोल रहा, व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस रिवोल्यूशन के रोल क्या थे, वो अपने बात करते हैं. आपको मैंने कोशिश बता दी है कि उनकी पॉलिसीज इंडियंस के लिए अच्छी नहीं थी. सेकंड थिंग, व्हेन द स्पॉइज का मींस सुनिए आप ध्यान से, SEPOYS, स्पॉइज, इट मींस सोल्जर. ओके, सोल्जर्स they were going to Delhi. जब वो दिल्ली जा रहे थे, on the way they also plundered, PLUNDERED, plunder, इसमें लूटना. उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जो ट्रेजर्स थे, जो भी मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, ऑफिसेस रिपोर्ट थे, गवर्नमेंट रिपोर्ट, उन सबको जला देना, उन सबको लूट लेना, है ना. ऐसा कुछ वो सिस्टम करते रहे. धीरे धीरे वो दिल्ली पहुंच जाते हैं. एट लास्ट they also looted. एक वर्ड लिखा है आपकी हिस्ट्री में, LOOTED. लूटेड मींस रोब करना, किसी को प्लंडर, लूट लेना. ओके, तो सोल्जर्स ने मनी लैंडर को भी लूटना स्टार्ट कर दिया. अकॉर्डिंग टू दिस वन वी कैन से दैट कि 1857 के रिवोल्ट की जो जितनी भी बातें हैं वो अपने करनी है. कहां से कौन लीडर है, फर्स्ट थिंग वी हैव टू टॉक अबाउट, ये आपने देखना है. फ्रॉम वेयर इट वाज लीडिंग, कि कहां से कौन से लीडर ने इसे लीड किया है. And what happened with them, उनके साथ क्या कुछ हुआ है. जैसे अगर अपने तात्या टोपे की बात करें, तात्या टोपे came to Rajasthan that time. Okay, 2 and 3 times. Okay, 2 and 3 times, maybe 2 and 3 times he came to Rajasthan for getting help from the Rajasthanis. And that time he didn't get any help. It means a little bit he gets support, but totally he was not supported by them. At last, when they came, and he was arrested and he was hanged. तो यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए कि 1857 में किन कौन से लीडर को अरेस्ट किया गया एंड हाउ मेनी लीडर्स. ओके, लिटिल बिट आपको ये पता होना चाहिए कि हैंग, HANGED, हैंग का मींस होता है फांसी लगा देना. कितने लीडर्स को फांसी लगा दी गई, लिटिल बिट आपको ये सब पता हो. फॉर एग्जांपल, बिफोर 1857, बिफोर 10 मई 1857, इससे पहले आपने कभी नाम सुना होगा मंगल पांडे. ओके, मंगल पांडे, he was a spy, and when he was in Barakpur camp, it means Barakpur camp means you can say the military camp, and he was a spy. That time he refused to use the cartridge, it means bullet which was coated by the pig and cow beak, you can say that skin. उस टाइम जो कार्ट्रिज यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन का कार्ट्रिज, ये कोई कार्ट्रिज है. ओके, एंड इट इज कोटेड, ये दिस वाज द इन बुक्स वी व्हाट वी हैव रिटन देयर. बुक्स में क्या लिखा कि ये र्यूमर था. पहले र्यूमर का मीन सुनिए, RUMOUR, र्यूमर मीन अफवाह. बुक्स में कि र्यूमर्स ने भी हेल्प किया, मे बी हो सकता है ये सही भी हो, बट इट इज नॉट ट्रू बाय द ऑथेंटिक बुक. ओके, सुनिए, र्यूमर क्या था कि ये जो कार्ट्रिज, ये कार्ट्रिज है. कार्ट्रिज का मींस मैंने अभी बताया है कि बुलेट को कहते हैं वैसे. ओके, जो बुलेट यूज करते थे, इसके ऊपर किस का मतलब स्किन यूज हुआ है, एक काव और सेकंड नंबर पिग. एंड व्हेन वी कोटेड बाय इट, कोटेड का मींस इसको ऐसे कवर किया हुआ. कोट का मींस क्या, वैसे कवर किया हुआ. ये बुलेट थी ना, फॉर एग्जांपल दिस वन का बुलेट, ये बुलेट है ना, इट इज कोटेड बाय काव एंड पिग स्किन. यहां पे क्या काव और पिग की स्किन कोट की. When we use it, जब अपने we have to pluck it out with the help of mouth. अपने इससे क्या करेंगे, इसको pluck out करेंगे. Okay, then कहा कि cow according to India Hindu and according to Muslim कि वो हमारे they are going to destroy our religion. क्यों हमारे religion को क्या कर रहे हैं, destroy कर रहे हैं. ऐसी बातें चलती रही. When मंगल पांडे refused to use it, मंगल पांडे ने refuse कर दिया. On 29 March, sorry for it. On 29 March, Mangal Pandey refused this cartridge. It means he did use it and he refused to British officer. उसने British officer को बोला कि मैं यूज नहीं करूंगा.
जब ऐसा बोला गया उस टाइम मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स को क्या मार दी, गोली मार दी, एंड मंगल पांडे वाज अरेस्टेड बाय द यूरोपियंस, इट मींस ब्रिटिश ने मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया। मेरी बात फिर से सुनिए, मंगल पांडे डिड नॉट वांट टू यूज दैट कार्ट्रिज, उस बुलेट को यूज नहीं करना चाहते एंड ही रिफ्यूज टू यूज इट, उन्होंने इसे यूज करने से मना कर दिया। मंगल पांडे वाज अरेस्टेड, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया एंड मंगल पांडे को हैंग, इट मींस फांसी लगा दी। कब लगाई गई फांसी? 8 अप्रैल 1857। कहने का मीन्स क्या है, बुक्स में ये भी लिखा है कि मंगल पांडे वाज द फर्स्ट मार्टिर ऑफ दिस रिवोल्ट। मार्टिर का मीन्स ये होता है शहीद होना। राजकुमार सर स्पेलिंग पता TYRE, सही स्पेलिंग लिखा मैंने, ओके। मार्टिर मीन्स शहीद होना। तो मंगल पांडे इस मतलब कि वी कैन से दैट इस रिवोल्ट के फर्स्ट मार्टिर थे। ही वाज हैंग्ड। एक बार फिर से सुनो, मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिज, मंगल पांडे ने उस कार्ट्रिज को, कार्ट्रिज मींस बुलेट, जो अपनी प्लग करता विद द हेल्प ऑफ माउथ, ऐसे उसको प्लग करना होता है, ओके। तो उन्होंने उसे मना कर दिया कि डिस्ट्रॉइंग आवर रिलीजन, वो हमारे धर्म को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आफ्टर दैट मंगल पांडे शूट 2 ऑफिसर्स, उसने 2 यूरोपियंस को मार दिया, ब्रिटिश ऑफिसर थे, एंड मंगल पांडे वाज अरेस्टेड, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया। ये 1857 से पहले की बात, यानी कि पहले का मीन्स ये है कि 10 मई 1857 से पहले ये इंसिडेंट हुआ, ओके। मान लो कि यहाँ पे ये मई है, ये अप्रैल है, इस अप्रैल को उनको क्या हुई, फांसी, हैंग। आप अपनी बुक देखिए, उसमें सब कुछ लिखा होगा। 8 अप्रैल on 8 April 1857 मंगल पांडे was hanged and he refused to use that cartridge on 29 March. Okay, I hope you understand. Hopefully मैं ये समझ सकता हूँ कि I hope you understand what I taught. मैंने लिटिल बिट आज हिंदी कुछ ज़्यादा यूज किया होगा, फिर भी आप अपने बुक को खोलिए, उसमें कुछ लिखा होगा, कुछ वर्ड आई एम टीचिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से कुछ मिलेगा एज ए नोट्स, इनको मतलब तैयार करिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी करिए। हाँ, इफ यू वॉच माय वीडियो वेरी केयरफुली, आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम हुई व्हेन वी रिवाइज, जब अपने टॉपिक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद रिवीजन पे आएंगे, उस टाइम मैं आपको कुछ बातें और यूज करूँगा। थैंक्स अ लॉट टू वॉच माय वीडियो।